मेरा एक सपना था। मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊँगा। एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। आई वॉन्ट टू बी with the poor people, I want to stand by the poor people, I want to fight for poor people. His one-liners always win hearts. His craft has been honored with Padma Bhushan recently. He is none other than Bengal's and Bollywood's icon, Mr. Mithun Chakraborty. He is also the star campaigner of BJP in West Bengal. Sir, thank you very much for taking time out to talk to us. Sir, my first question to you is, in this sweltering heat, we are seeing you are campaigning for every candidate in each constituency. And clearly, you do not have any political interest. What is your motivation, sir? A good question. That means you have been watching me. Well, right. Heat is too much. 45. Feel like 47. Sometimes my legs are shivering. Very, 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 very hot. What is my motivation is, if everybody works to get, they want something from the party, then we will look after the party. We will do something for the party. I am the man who wants to do everything for the party and let them enjoy. I'm happy. If they win, they enjoy, I'm happy. But I'm here to work for the party. Because my motivation is two people. Very, very, I'm motivated by them. I follow them. So one is our Prime Minister Narendra ji, Modi sir, and one is Mohan Bhagwat ji. So I have seen them, I've seen their sacrifices. They want nothing because उनको कुछ लेना देना नहीं है. They have nothing. आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं, दोनों के. आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी. तो क्या लेंगे? तो उनको देना है. So they love their country so much, and for them, for that, they are doing so many things. And I watch them, follow them, and they inspire me a lot. So that's why I don't want anything from the party. Of course, ये नहीं सोचना कि they have not offered me. They have offered me big things. But I said no, sir. मुझे कुछ नहीं चाहिए पार्टी से. Big things like? वो छोड़ो ना, वो सब क्या होता है, फिर बहुत सारी बातें आएगी. बड़ी चीज़ें ऑफर की है, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मुझे पार्टी के लिए काम करना है. तो लेट मी वर्क. सो आई एम वर्किंग फॉर द पार्टी एंड आई वांट देम टू विन एंड एंजॉय इट. कोई तो होगा पार्टी के लिए कुछ करेगा. सभी अगर पार्टी में है तो मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी कुछ चाहिए, तो फिर पार्टी कौन संभालेगा? Sir, you have been a part of not only one, two, three political parties, as we all know, also in West Bengal. Everybody says that. And I want to correct you. I never been to any party. I was officially a Chhatra Parishad candidate and I won election in college, 9 corner. CPM, I was friendly with Subhasda because as a brother, Jyoti Basu uncle. But I've never been a CPM. You were a friend of... but I've never been a member or anything for the... So आप लोगों ने सोच लिया कि हमने ये किया है. अगर मुझे सुभाषदा ने कहीं जाने को बोला है, मैं गया हूँ, so that doesn't mean कि I'm a CPM, क्या बोलते हैं, cadre. No, I've never been. But I've always helped them, supported them. कोई बोला कि ये करने से अच्छा होगा तो मैं गया हूँ. लेकिन उसमें देश का अच्छा होना चाहिए, like that. And then I joined तृणमूल. उसके आप बोल सकते हो, सबका नहीं. Yes, Trinamool and BJP. So,
what is the difference that you are seeing? You have worked with both the leaders. I have done a greatest mistake joining. बिकॉज जब ज्वाइन से पहले कुछ कहा गया था और ज्वाइनिंग से बाद कुछ और कहा गया है. सो देन आई रियलाइज के सॉरी आई एम नॉट ज्वाइन दिस बिकॉज टू जाने दे वेरी हार्ड थिंग. सॉरी आई मेड ए मिस्टेक. बट बीजेपी इज समथिंग. बीजेपी आउटलुक इज वेरी बिग आउटलुक. एंड ओनली थिंग फर्स्ट थिंग इज कंट्री. देखिए सब गिमिक्स करते हैं. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ गिमिक्स एंड दैट्स फेयर. नो प्रॉब्लम. आई थिंक दैट्स फेयर. कोई ये बोलता है देंगे ये करेंगे ये करेंगे, दैट्स फेयर. लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट देश है, कंट्री है, और कंट्री में हम सब हैं. तो कंट्री का अच्छा होगा तो हमारा सबका अच्छा होगा, है ना. दैट इज दैट आउटलुक. कंट्री बीजेपी हैज़ ए बिगर आउटलुक. ये सब जाने दो अभी. साथियों ताली बजा दो, स्वागत करें. कन्हैया कुमार जी एंट्री कर चुके हैं. कन्हैया कुमार जिंदाबाद. कन्हैया कुमार जिंदाबाद. Kanhaiya Kumar has been announced as one candidate from Northeast Delhi seat, in fact, a candidate from India Alliance against Manoj Tiwari. Political pundits say that this fight is going to be very, very interesting. But before that fight, we have several sort of allegations that have been put on Kanhaiya Kumar. In fact, Kanhaiya is joining us now. We'll try to talk to him on different aspects, including all these allegations. Kanhaiya, thank you so much for your time. पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको कैंडिडेट यहाँ घोषित किया गया है, लेकिन देख रहे हैं हम कि डीपीसीसी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को शायद इस बात से दिक्कत है. तमाम तरीके की नारेबाजी हमने देखी. कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार है और पैराशूट से लाके यहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है. नहीं, मेरे खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं है और ना ही मेरे खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है. और कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, अगर कहीं कोई नारेबाजी हुई है तो इसका मतलब ये है कि एक सीट पे कई दावेदार हैं. तो वो जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ख़त्म हो गई है, इसका मतलब उनका आरोप जो है वो झूठा था. तो अगर नारेबाजी हुई है और कई लोग एक सीट पे जो है दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो ये संगठन के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये अच्छी बात है. इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कोई नाराज़गी नहीं थी, ना मेरे खिलाफ जो है किसी ने कोई जो है नारेबाजी की है. इनफैक्ट जो है कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और तमाम जो है विधानसभाओं से और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे. मनोज तिवारी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज तिवारी हमने इंटरव्यू किया तो हमारे इंटरव्यू पे भी, साथ में अपनी सभाओं में भी लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो देश का सम्मान नहीं करता, आर्मी का सम्मान नहीं करता. हमने आपको कई बार कहते हुए सुना है कि चार्जशीट कहाँ है, चार्जशीट में मेरा नाम कहाँ है, कौन से नारे मैंने लगाए, दिखाओ सबूत दो, ये सब दो. लेकिन इस आरोप को कैसे झेलेंगे? और खासकर क्योंकि आपने पहले भी कहा कि नैरेटिव की लड़ाई है, परसेप्शन की भी लड़ाई है. लोगों को जब ये बताया जा रहा है कि जो सामने उम्मीदवार है वो एक ऐसा उम्मीदवार है जो देश विरोध के नारे लगाता है, कैसे टैकल करेंगे? देखिए, आपने अपनी बातों में ही कह दिया कि ये आरोप है. मैं हमेशा कहता हूँ कि भाजपा मेरे विरोध में है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के लोग हमारे बारे में गलत बात बोलेंगे, हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हमारे बारे में तमाम तरह की जो है झूठ बात जो है, गलत बात जो है वो कही जाएगी. देखिए, दिक्कत ये है ना कि जब मनोज तिवारी जी ये आरोप लगाते हैं तो वो एक चुने हुए सांसद हैं, 2 बार के एमपी हैं, वो उनकी सरकार है 10 साल से. जब वो ये बात बोलते हैं ना, मेरे ऊपर जब कीचड़ उछालते हैं, तो वो अपना हाथ खुद गंदा करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी सरकार है. अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जय शाह के पिताजी कोई काम नहीं करते हैं. वो अपनी ही सरकार पे ये उंगली उठा रहे हैं. और जो ये बात मैं कहता हूँ कि ये बात बोली इसलिए जाती है ना, ताकि वो ये ना सवाल लोग उनसे पूछें कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है. आजकल वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है. तो क्या काम किया है? कितने अस्पताल बनाए हैं, कितना स्कूल बनाया है, कितनी सड़कें बनाई हैं, कितना जो है उस क्षेत्र में विकास का काम किया है, ये बताएं वो लोग को.
वो इस तरह की गुमराह करने वाली झूठ बात इसलिए बोलते हैं ताकि लोग उनसे रोजगार की बात ना पूछ सकें, महंगाई की बात ना पूछ सकें, विकास की बात ना पूछ सकें। और जो वादे किए थे सरकार ने कि आपके खाते में 15 लाख पहुंचेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी 2022 तक, ये 2024 है, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, कहाँ हैं ये सारे सवाल? तो मनोज तिवारी जी इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि 2 बार आपको वहाँ के लोगों ने सांसद बनाया और एक बार तो 2019 में आपको 50% से ज़्यादा वोट मिले, तो आप बताएं कि आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई पुलिस करेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई कोर्ट करेगी। और जो है, जब आपकी सरकार 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी झूठे आरोपों में पकड़ करके जेल में डाल दी है, तो हमको फ्री छोड़ दिया है, तो जब वो हमारे ऊपर कीचड़ उठाते हैं तो एक्चुअली अपना हाथ गंदा करते हैं। कन्हैया, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, कहीं जाना है आपको, लेकिन कुछ जल्दी मैं सवाल ले लूँगा। प्रधानमंत्री इन दिनों मंगलसूत्र पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स हो रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो नज़र है वो लोगों की आमदनी पर है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। उसको किस तरह से देखते हैं? ये अव्वल तो जो है, इस तरह की जो मुद्दे भटकाने वाली बातें हैं उस पर कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ये जो है ना कोशिश रहती है कि आप कोई गलत बात बोल दो, दिन भर जो है उस पर चर्चा होता रहेगा। वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं कि उनसे कोई काउंटर सवाल पूछा जाए, तो वो जानबूझ करके ऐसी बातें बोलते हैं ताकि इस देश में जो बेरोजगारी की बात है उस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो, महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कोई बात नहीं हो, लोगों की आमदनी कम हो रही है उस पर कोई बात नहीं हो। आज आप इस देश के नौजवानों की हालत देखिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है देश में, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो रोजगार शब्द नहीं निकलता है, इस तरह के उलझुल आरोप लगाना। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप हमारा न्याय पत्र लीजिए, आप हमारा मैनिफेस्टो लीजिए और हमको दिखाइए कि कहाँ यह बात लिखी गई है। तो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को, इतने सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। राजनाथ सिंह ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सचर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि जो सेना में जो मतगणना होनी चाहिए वो रिलीजन के आधार पर भी होनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में हुआ, ये उसका विरोध किया और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव है कि दिखाता है कि जब कांग्रेस आएगी तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि देश की यूनिटी के लिए खतरा है। देखिए, एक बात बताइए, देश में बहुत सारे आयोग बने हैं। इस देश में जो है मंडल कमीशन आयोग बना है, सच्चर कमेटी आयोग बना है, काका कालेलकर कमेटी बनी है, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो सैकड़ों कमेटियां बनी हैं। कमेटी बनती है, कमेटी जो है रिकमेंडेशन को लागू करने की बात करती है। एक कमेटी बनी है स्वामीनाथन आयोग कमेटी भी है, जो कहती है स्वामीनाथन आयोग की किसानों को एमएसपी की गारंटी करनी चाहिए और किस तरह से गारंटी करना चाहिए। तो कमेटी अपनी सिफारिश करती है, वो कमेटी का काम है, उसमें ये ज़बरदस्ती कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं? असल बात यह है कि 10 साल से ये सरकार में है और 10 साल में इन्होंने क्या देश के लिए काम किया, ये गिनाने के लिए इनके पास है कुछ नहीं। ये बोल ही नहीं रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा हुआ, महंगाई क्यों दुगनी हो गई। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था 100 रुपये लीटर मिल रहा है, जो सोना 35 हज़ार रुपये तोला मिल रहा था आज 73,000 रुपये तोला मिल रहा है। तो बढ़ती हुई महंगाई पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बेकारी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसानों की आत्महत्या पे नहीं कुछ बोल रहे हैं। आपको मालूम है, इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। इस देश के भविष्य को कई युवा, जो इस देश के युवा हैं, उनका जो भविष्य है उसको अंधकार में धकेल करके ये इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उसको भारी समर्थन मिल रहा है। इस बात से ये घबराए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, नारी न्याय के तहत जो कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी योजना लेकर के आई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है। नौजवानों के लिए जो 1 लाख रुपए और पक्की पहली नौकरी पक्की, वह जो योजना लाई गई है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 30 लाख जो है भर्तियों को हम तुरंत भरेंगे, जो रिक्त पद हैं उसको हम भरेंगे, इसको भारी समर्थन मिल रहा है। और ये अग्निवीर जैसी योजना ला करके जो भविष्य नौजवानों के जीवन के साथ खेल रहे हैं, वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बेसिक इश्यूज पे बात नहीं हो, उनको मुद्दे भटकाने दीजिए। हम तो वही सवाल पूछते रहेंगे जो पूछते रहे हैं कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान, ये राजनीति का विषय होना चाहिए। और झूठ बोलना,
किसी पार्टी के बारे में जो है दोषारोपण करना, कीचड़ उछालना, व्यक्तिगत हमले करना, इससे देश का भला नहीं हो सकता है। उनका राजनीतिक भला हो सकता है, लेकिन देश का भला तब होगा जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी और मिडिल क्लास जिस तरीके से आज महंगाई से जूझ रहा है उसके लिए हम कोई योजना लेकर के आएंगे। Former state captain of BJP. He is always in news for his statements. He is now contesting from Bardhaman Durgapur, where the temperature has crossed 42 degrees centigrade. From the morning he has done campaign, and now we'll talk to him. He is in his constituency election working office. He is Dilip Ghosh. We'll talk to him. Dilip da, why is it that you are always in news? मैं न्यूज़ नहीं चलाता हूँ, आप लोग न्यूज़ चलाते हैं। ये बात सही है कि केवल न्यूज़ मैं बनाता हूँ। तो देखिए, न्यूज़ पॉलिटिशियन को न्यूज़ में रहना चाहिए, और जो चैनल्स है, जो मीडिया है, उनको भी न्यूज़ चाहिए। अब मीडिया का न्यूज़ क्या बनता है वो भी थोड़ा जानना चाहिए। तो मुझे जो लगता है, जो कई बार लोग नहीं बोलते हैं, मैं वो बात बोलता हूँ। लोगों को थोड़ा उठपट सा लगता है कि कैसा बोल दिया, ये वो बोलते हैं, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर देती है कि ठीक है, ये हमारी बात है, कोई नहीं बोलता, दिलीप घोष बोल दिया है, और ये आप भी जानते हैं, इसलिए आप उसको चलाते हैं। दिलीप दा, एक आप फॉर्मर कप्तान रह चुके हैं बीजेपी स्टेट यूनिट का। आपके टाइम में 18 सीट आया, उसके बाद में योर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो चेंज। क्या दुख नहीं लगता है? क्या नाइंसाफ़ी नहीं है आपके साथ? जहाँ कम वहाँ हम, ये हमारी संगठन की बात है। जहाँ कमजोरी है, जहाँ कोई समस्या है, उसको भेजा जाता है जो निपटा सकता है, जिसमें वो कॉन्फिडेंस है, जिस पर पार्टी का विश्वास है। तो मुझे लगता है मेरे बारे में ऐसा ही होता है। जहाँ कमी होती है, मैं जब संगठन में आया तो आप जानते हैं बीजेपी 10 साल पहले क्या था, इधर कुछ नहीं। तो फिर वो चलता था, हिंसा शुरू हो गया, जिससे हम बढ़े, अटैक हुआ, 250 से ज़्यादा लोगों का राजनीतिक हत्या हुई है। तो जब कार्यक्रम होता था, कहीं पर जाके करना है, कौन जाएगा, मैं मेरे टीम को बोलता था कि आप लोग कर लो, जहाँ कोई नहीं जाएगा, नहीं हो पाएगा, मुझे वहाँ भेज दो। ऐसे मैं गया। अगर मैं नहीं जाता तो ना मेरे ऊपर अटैक होता, ना कोई कंट्रोवर्सी होता, ना कुछ और होता। लगभग मैं 28-30 केसेस का मैंने दिया है नॉमिनेशन में, कि इतना मेरे जानकारी में है। कौन सा कोर्ट में कहाँ केस है मुझे नहीं मालूम, कितना ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहाँ केस नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ। 10 बार 15 बार तो गाड़ी ही तोड़ा है मेरे ऊपर, शारीरिक मेरे ऊपर अटैक भी हुआ है। तो इसको झेलते हुए मैं आगे बढ़ा, पार्टी आगे बढ़ी। तो इसको लेके तो कंट्रोवर्सी होता ही है। जो अच्छा रिजल्ट्स देते हैं उसका अच्छा जगह मिलता है, क्या आपको नहीं खराब लगता है कि शायद वो जगह आपको नहीं मिला? मेरी माइंड सेट है, कोई भी काम दो हम कर देंगे, और पार्टी का जिस पर भरोसा है कि वहाँ कौन संभाल सकता है उसको है। हमारे पार्टी में अलग है, जो अच्छा करता है उसको और कठिन काम दिया जाता है, क्योंकि पार्टी जानता है ये कर देगा। तो मुझे 2 बार मुझे GS बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, विधानसभा लड़ाया गया, जब बीजेपी नहीं जीता था। फर्स्ट टाइम हम 3 जीते, उसमें मैं था। मुझे पार्लियामेंट लड़ाया गया, जिताया गया, पार्टी ने जिताया है, दिया है। फिर वो पार्टी, मैंने बोला कि देखिए मेरे तो 6 साल पूरा हो गया, नया लीडरशिप आना चाहिए, क्योंकि पार्टी का लड़ाई करते करते एक जैसा हो जाता है। तो पार्टी में वैराइटीज़ आनी चाहिए। पार्टी जिम्मेदारी से काम कर रही है, मुख्य विपक्षी दल बन गई है, तो नया लीडरशिप आना चाहिए। अब लीडरशिप में चेंज आया, मुझे राष्ट्रीय नेता बनाया गया। अब बोला गया जाओ चुनाव लड़ो, तो मैं सोचा था जहाँ मैं लड़ रहा हूँ, 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ, रेडी कर दिया वहीं होगा। लेकिन पार्टी को लगा कि यहाँ आना चाहिए, बोला तो जैसा कि गोली चलता है ना बंदूक का, तो मैं सीधा इधर आ गया। दुख नहीं है? दुख क्या है, देखिए नया चैलेंज लेने में खुशी होती है, हिम्मत होता है। मैं 40 साल से घर छोड़कर संघ का प्रचारक, बाकी बीजेपी में काम कर रहा हूँ, और जहाँ चैलेंजिंग है हमेशा संगठन मुझे भेजा, क्यों पता नहीं, और मेरा आदत पड़ चुकी है वहाँ जाके काम करना और संगठन खड़ा करना। यहाँ पे लोग बोल रहे थे हाउ इज द जोश दिलीप घोष। दिलीप घोष का जोश कैसा है जब आप दूसरे लोगों को इतना जोशीले कर दे रहे हैं? मैं 4-5-6 घंटा रोड शो करता हूँ रोज गांव में। आज वर्धमान आप जहाँ बैठी हुए, यहाँ 45 डिग्री होने वाला है, जो रिकॉर्ड है। इसके पहले 45.1 हो गया है, यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देश में। और मैं 1 महीना पूरा 25 से 25 तक नॉन पॉलिटिकल प्रचार किया। जितना फेस्टिवल हुआ, 8-10 फेस्टिवल हुआ, बड़ा गैदरिंग हुआ,
लाखों लोगों से मैंने जाके इन्फॉर्मेशन मिला, मेला में, पूजा में। फिर नॉमिनेशन हुआ 24 को, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल प्रचार शुरू किया, रोड शो, सभाएँ अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहा हूँ। अभी महिला मोर्चाओं की 42-43 डिग्री टेम्परेचर में उन्होंने चार चक्र किया, मैंने वहाँ बैठा था। तो जितना आगे समय बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, उत्साह भी बढ़ रहा है। अब स्लोगन कोई इतनी गर्मी में देता है, हाउ इज द जोश, दे रहे हैं लोगों को जोश है। बीजेपी में क्या कोई गुटबाजी है? देयर आर 3 ग्रुप्स, पीपल से सुकांतो ग्रुप, शुभेंदु ग्रुप, दिलीप ग्रुप, इतना ग्रुपबाजी लोग बोलते हैं और आपके ऑपोजिशन बोलते हैं, आपका क्या कहना? लोग बोलते हैं, पार्टी का कोई कभी भला है कि ग्रुप है? एक कल्चर ही हमारा नहीं है। दिलीप घोष तो कभी ग्रुप में नहीं गया। मैं नेता बनना है तो पार्टी का बनना, फिर सोसाइटी का बनना। किसी ग्रुप का लीडर बनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो पार्टी ने मुझे नेता बना दिया, आज सोसाइटी में मैंने मान लिया है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का MP हूँ। मुझे क्यों मीडिया इतना कवर करता है? From donning the lawyer's blacks to the proverbial kurta white of the politician, I'm joined by Ujjwal Nikam. He's the BJP's candidate from Mumbai North Central. I want to thank you for joining us, sir, for taking out the time from your busy campaign schedule. We are less than a month away before Mumbai votes. What made you take the political plunge finally after so many decades as a lawyer? It's not a political stand as such, but it's a calculated move of mine. You see, all the while, right from when I got the degree of law, I was fighting against the united criminal. I never defended any criminal, and especially my interest was the national interest. And that is the reason, you see, earlier also many political parties had approached to me. But I have decided to enter into politics because now in my balance of life, I had to do for my nation. And that's why I have decided to enter into politics. So this is your major plank, nationalism, national security, fighting for the country. Is that your election plank? It is not only that, to serve for the common man. Because all the while fighting against the criminals, I was trying to give justice to those people who have been everything they had lost. But now after joining the politics, one of the major my plank is that the national security, national interest, and secondly, what are the difficulties of a common man in general and in particular about my constituency. You know, we are less than 1 month away before your constituency votes. Do you think you have enough time to campaign? Do you think your plank will resonate? There is enough time for people to understand what you're fighting for? Yes, I firmly believe that yes, though I have a very less time, but I will do because my colleagues are totally supporting me, and I am motivated by what our beloved Prime Minister, Mr. Narendra Ji Modi has said, that terror and talk can't go together. See, I was carefully listening his all speeches, and in every speech I found there is a current, and our youth is being motivated by his speeches. So I had decided to join, because ultimately I had to select national party. So I found that BJP is one of the strongest national party who is having certain goals for the common man, who has defined some specific plans for our country, and therefore I decided to join BJP. You know, you spoke of your colleagues and them being supportive. You've replaced a sitting member of parliament in this constituency, Poonam Mahajan. You know her family. You've been a prosecutor for her father's case as well. Many would say that you're an outsider politically, so to say. She was a sitting member of parliament, comes from a political family. You're up against someone who's also had electoral success. She's been the MLA here as well. How do you think you fare in that fight? See, firstly, I will discard your allegation that I am an outsider. I am not an outsider at all, because since 1993 I am fighting for the people of Mumbai. Listen, 93 Mumbai city was rocked, a series of the powerful bomb blasts. Thereafter, there was a terror attack on Mumbai, the twin bomb, and so many cases. I was defending the people who have been lost everything. So,
ultimately, this allegation is not correct that I am an outsider. My major life for the better securement of the people of Mumbai. And thirdly, so far as you have said about the Poonam Mahajan, I have a good relation with the family, and I don't think that's anything happened. Sir, my last question to you. We spoke to the Prime Minister 2 days ago. He said the sympathy is with the BJP because Uddhav Thackeray betrayed the BJP. We had a relationship with Balasaheb Thackeray, with the Shiv Sena, but there are two Shiv Senas now, there are two Pawar factions. The voters of Maharashtra are confused, is what many say. Do you think the sympathy is with the BJP? Is that something that will work? It's not a question of sympathy. It's a question of the total faith of a common man in BJP. See, even though there is no question of the betrayal, now there is an illegal endorsement of this issue that who is real and who is not real. So whatever the Shiv Sena, which are being under the command of Mr. Shinde, that is being recognized as a real Shiv Sena. So I don't want to go into that politics, but I would say that BJP is a major player in the whole things, and the common man has a tremendous faith in BJP as well as Shiv Sena led by the Uddhav Balasaheb Thackeray, and so far as the other Rashtravadi, NCP, the partner, and the RPI led by Mr. Rathod. I hope your confidence translates into votes as well for you. All the best, sir, and thank you so much for speaking with us. Thank you.